Hello dear students, welcome to my class. Your English teacher is here. Dear students, as you can see on your mobile screen that today we are going to study one more interesting poem which teaches us the lesson of unity. So the name of the poem is No Men Are Foreign. Okay. In this poem, however, the poet reminds us of the many ways in which we all are the same, for we are all humans. So let's start reading. Before you read, let's read the blue box here. Have you ever thought of some people as strange or other countries as foreigner? We have many ways of thinking of other people as different from us as them. They may belong to a different country or speak a different languages. Dear students, in this world, as you know that there are so many countries, every country have their own culture, own language, their custom, tradition. So, the native of that countries are different on the basis of language, but as a whole, we all are same. Why? Because we all are human beings. So this poem gives us a beautiful message. Let's start reading. Remember, no man are strange, no country is foreign. Beneath all uniforms, a single body breathes. What the poet wants to say, dear friends? In these lines, in this paragraph 1, the poet reminds us that no men are foreign. It means no men are strangers. And no countries are foreign. Beneath all uniforms, a single body breathes. Very beautiful line. Soldiers of different countries wear different types of uniforms, but their bodies are alike. पोइट क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर? रिमेंबर, नो मैन आर स्ट्रेंज. इस संपूर्ण ब्रह्मांड में, धरती में कोई भी मनुष्य क्या नहीं है, स्ट्रेंज नहीं है. कोई भी कंट्री स्ट्रेंज नहीं है, विदेशी नहीं है, हमसे अलग नहीं है. बेनेथ ऑल यूनिफॉर्म्स अ सिंगल बॉडी ब्रीथ. वो सारे सोल्जर्स जिन्होंने अलग अलग यूनिफॉर्म पहनी हुई है, वो क्या कर रहे हैं? सोल्जर्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिफॉर्म्स बट देयर बॉडीज आर अलाइक. दुनिया में, विश्व में जितने भी सोल्जर्स हैं, सिपाही हैं, सैनिक हैं, आर्मी मैन हैं, भले ही वो अलग अलग यूनिफॉर्म्स पहनते हो बच्चों, लेकिन यूनिफॉर्म के अंदर ढका हुआ शरीर क्या है? मानव शरीर है, ह्यूमन बीइंग्स. हमारी ही तरह उनके बॉडी स्ट्रक्चर है, हार्ट है, आइज़ हैं. सो हम सिर्फ उनको अलग देश में रहने के कारण क्या नहीं बोल सकते हैं कि वो स्ट्रेंजर हैं. इट मीन्स दे ऑल आर सेम जस्ट लाइक अस. वो हमारी ही तरह हैं. ठीक है. लेट्स कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. I hope you all have taken out your books. This is paragraph 3rd. They too aware of sun and air and water. What the poet is trying to say here? The poet is saying that they also have the knowledge about sun, air and water, how to use water, why air is necessary, what sun gives us. Okay? Because they are also human being. They stand for the people who is considered here as a foreigner.
हमारी ही तरह जो फॉरेनर्स हैं, विदेशों में रहने वाले लोग हैं, वे सन के बारे में जानते हैं, एयर के बारे में जानते हैं, वाटर के बारे में जानते हैं. सो हाउ वी कैन से दैट दे आर फॉरेनर, दे आर स्ट्रेंजर्स? दे आर नॉट स्ट्रेंजर्स. ओके. आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट, बाय wars long winter starved. क्या कह रहे हैं यहाँ पे पोइट? आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट, बाय wars long winter starved. It means the soldiers who wears different kind of uniforms are happy during the peace. It means जो अलग अलग देशों में रहने वाले सिपाही हैं, सैनिक हैं, वो क्या करते हैं? दे आर हैप्पी ड्यूरिंग पीस. वे खुश होते हैं जब देश में शांति का माहौल होता है, खुशी से खाते हैं पीते हैं. बट दे बिकेम माइजरेबल ड्यूरिंग द वॉर. इट मीन्स वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं. विंटर यहाँ पे किसके लिए कहा गया है? वॉर विंटर, लॉन्ग विंटर स्टार्व. इट मीन्स उन्हें जब युद्ध होता है, अशांति होती है, एक दूसरे के बीच में लड़ाइयाँ होती हैं, दो देशों के बीच में युद्ध का माहौल होता है, तो उन्हें क्या लगता है? बहुत ज़्यादा दुख पहुँचता है, बहुत तकलीफ़ होती है. Their hands are ours and in their lines we read, a labor not different from our own. क्या बता रहे हैं यहाँ पे? The land is everywhere same. यहाँ पे पोइट क्या कह रहे हैं? Their hands are ours. हमारे हाथ भी उनके हाथ की तरह हैं और उनके हाथ भी हमारे हाथों की तरह हैं. And in their lines we read. और उनके हाथों की रेखाएं भी बिल्कुल हमारे हाथों की रेखाओं की तरह ही हैं. A labor not different from our own. मतलब ऐसा नहीं है कि हम ज़्यादा मेहनत करते हैं या वो कम मेहनत करते हैं. लेबर, परिश्रम, हार्ड वर्क. A labor not different from our own. और जो भी परिश्रम वो करते हैं युद्ध के लिए, वो सेम वैसा ही है, सारी प्रिपरेशंस वैसी ही होती है जैसे हम हमारी कंट्री के लिए या हमारे देश के सैनिक करते हैं. सॉरी, सेकेंड पैराग्राफ दिस वाज, आई थिंक दिस इज़ द थर्ड वन. Okay. Remember, they have eyes like ours that wake or sleep, and strength that can be won by love. What the poet wants to say in these lines? You can clearly notice that the poet is saying we all have human body, we all are humans. So they also have eyes like us, they also have hands like us, they also have brain like us. और उसी आँखों से वो क्या करते हैं? सोते हैं और जागते हैं. And strengthen that can be won by love. और उनकी जो ताकत है उसको सिर्फ किससे जीता जा सकता है? Only by love. प्यार से, प्रेम से और स्नेह से उनके दिलों को भी, उनकी ताकत को भी जीता जा सकता है. In every land is common life that all can recognize and understand. क्या बताया यहाँ पे? In every land is common life. हर लैंड में, हर जगह, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जहाँ पर धरती है वहाँ पर सभी जगह लाइफ कैसी है? कॉमन होती है. लोग रातों को सोते हैं, दिन को जागते हैं, खाते हैं, पीते हैं, नॉर्मल एक्टिविटीज़ करते हैं. दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, जिसे हम जानते हैं और समझ सकते हैं. चलिए पैराग्राफ 4 की ओर चलते हैं. लेट्स कम टू द पैराग्राफ 4. Let us remember whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall dispose as betray condemned. Remember, we who take arms against each other. चलिए मीनिंग समझते हैं.
let us remember whenever we are told to hate our brothers. क्या कहा गया है यहाँ पे? The poet says that this is the earth on which we all live, work and die. ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम सभी रहते हैं, काम करते हैं, है ना, और एक वक्त आता है जब हम सभी इसी धरती में, मिट्टी में मिल जाते हैं. सो व्हाट वी आर ब्रदर्स. हम क्या हैं? आपस में भाई भाई हैं. इट इज़ अवर सेल्फ दैट वी शैल डिस्पोज इज बिट्रे एंड कंडेम्ड. इफ वी हार्म, द पोइट सेज, इफ वी हार्म एंड कंडेम देम, वी हार्म अवर सेल्फ. यहाँ पे पोइट क्या कह रहे हैं कि जो डिफरेंसेस हैं फॉरेनर्स, स्ट्रेंजर्स और हमारे बीच में, वो किसी और ने नहीं, इवन हमने खुद बनाए हैं, है ना. इट इज़ अवर सेल्फ दैट वी शैल डिस्पोजेज. और ये हम ही हैं जो उनके बीच में क्या करते हैं? अपने आप को धोखा देते हैं, अपने आप को बुरा बताते हैं और अपनी ही क्या करते हैं? निंदा करते हैं. रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर. कोई और नहीं आता है हमारे बीच में युद्ध करने के लिए, हम खुद ही हैं जो एक दूसरे के खिलाफ क्या करते हैं? अस्त्र शस्त्र उठाते हैं, वेपन्स उठाते हैं. ऐसा क्यों करते हैं हम? क्यों? क्योंकि हम मानते हैं कि वो फॉरेनर्स हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है. वो हमारी ही तरह क्या है? हमारी तरह एक आम इंसान है, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स हैं. चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ. इट इज़ द ह्यूमन आर्ट दैट वी defile. Defile means make dirty. So what the poet wants to say that? Poet is saying that if we go to war against each other, if we fight with each other, it means we pollute our common mother earth. यदि हम आपस में एक दूसरे से लड़ते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? हम हमारी मदर अर्थ, जो हमारी धरती माँ है, उसका क्या कर रहे हैं? अपमान कर रहे हैं. Our hells of fire and dust outrages the innocence of air that is everywhere our own. क्या कह रहे हैं यहाँ पर? जब हम, पोइट कह रहे हैं कि जब हम एक दूसरे के खिलाफ या विरुद्ध लड़ाई करते हैं या युद्ध करते हैं तो हम संपूर्ण मानव जाति की जो धरती है उसको क्या करते हैं? डर्टी बना रहे हैं, अपवित्र कर रहे हैं, और अपनी दुष्टता की आग और धूल से जो निर्दोष लोग हैं उन पर क्या कर रहे हैं? अत्याचार कर रहे हैं. रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंज. क्या बताया है यहाँ पर? Thus we can say that we shall bring destruction, disease and death. हम ही हैं जो दो देशों के बीच में, दो आपसी लोगों के बीच में झगड़े, विनाश और मृत्यु जैसी चीज़ें लेकर के आते हैं, आपसी दुश्मनी की वजह से, युद्ध की वजह से. सो व्हाट वी हैव टू डू? वी शैल स्टार्व एंड सफ़र. सबसे ज़्यादा परेशानी किसको झेलनी पड़ती है? हमको ही झेलनी पड़ती है. सो वी शुड लव वन अनदर. वी ऑल आर ब्रदर्स. नो वन इज स्ट्रेंजर और अ फॉरेनर. साफ बताया है बच्चों इस पोएम के माध्यम से. हु इज़ द पोएट? मिस्टर जेम्स क्रिकॉप हैं, जो उन्होंने बताया है कि कोई भी कंट्री अलग नहीं है, कोई भी उस कंट्री में रहने वाले लोग अलग नहीं है. द पीपल हु आर लिविंग ऑन द लैंड ऑफ अर्थ आर इक्वल. दे ऑल आर सेम बिकॉज दे ऑल आर ह्यूमन बींग्स. सो वी शुड स्टॉप hating each other, condemning each other and fighting against each other. We should love each other and try to live happily in this earth. We should just forget about the thought of strangeness. Okay? This was your poem. I hope you all like it. Thank you.